All right. So in the last class, what we started off was osmosis. And what we talked about osmosis was that osmosis is basically the movement of water molecules only from a region of high water potential towards a region of a lower water potential through a partially permeable membrane. फिर हम लोगों ने क्या बात करी थी फिर we talked about what water potential is. It's a ratio between solids and water molecules. We talked about the differences between the dilute and concentrated solutions. We talked about what a hypo and a hypertonic solution is. ठीक है? So going over it very quickly so that we can move ahead. जब भी हमारे पास किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कंपेरेटिवली वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम होगी और सॉलिड कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा और उसका वाटर पोटेंशियल कम होगा। क्योंकि उसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है, इट्स आल्सो गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। Similarly, those solutions that have a lower water, let's say lower concentration of solutes compared to water molecules, they are called as hypotonic solutions, right? And hypotonic solutions have a higher water potential. ठीक है? पोटेंशियल। तो ये बात हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर करी थी। ठीक है भाई? अच्छा, अब देखो, अब now we are going to put all of this into practice. We're going to do an example to see कि भाई अब ये सारी चीजें ना कैसे किस तरीके से काम कर रही हैं। अच्छा जी, so now what we did was we took a beaker, हम लोगों ने एक beaker लिया and we filled this beaker up with about 500 centimeter cube या फिर 500 milliliters of water, right? We fill this beaker up with 500 centimeter cube or 500 milliliters of water. All right. Then exactly in the middle, what we did was we put in a partially permeable membrane. So हम लोग यहाँ लिख देते हैं PPM. PPM is basically a partially permeable membrane. So this thing in green, right, is a partially permeable membrane. All right. Now, up when we put this partially permeable membrane exactly in the middle, assume कर लो कि बिल्कुल मिडिल के अंदर है, ठीक है? तो मेरे पास दो कंपार्टमेंट्स बन गए। So I have a compartment A and I have a compartment B, ठीक है? तो अब if all or the total volume of water in this or pure water in this beaker was about 500 ml, तो हर उसके अंदर हर कंपार्टमेंट के अंदर मेरे पास इक्वल वो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 250 सेंटीमीटर क्यूब। वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब जी। मतलब दोनों हमारे पास दोनों हमारे पास कंपार्टमेंट्स के अंदर वॉल्यूम इक्वल है, राइट? अच्छा जी, so that means that they're also going to have equal number of water molecules. So let's draw 6 water molecules signifying कि हमारे पास दोनों जगह वाटर मॉलिक्यूल्स इक्वल, राइट? अच्छा, अब now what we did was in both of the compartments हमने कुछ solutes डाल दिए, ठीक है? अब assuming हम लोगों ने कंपार्टमेंट ए के अंदर हाफ अ टेबल स्पून ऑफ सॉल्यूट डाला, राइट? तो हमारे पास कितने पार्टिकल्स आ गए? 1 2 3 4 फॉर एग्जाम्पल। कंपार्टमेंट बी के अंदर हम लोगों ने क्या करा, इंस्टेड ऑफ हाफ अ टेबल स्पून हमने पूरा का पूरा टेबल स्पून सॉल्यूट डाल दिया, मतलब डबल द अमाउंट। सो इफ हाफ द टेबल स्पून कंटेन अबाउट 4 सॉल्यूट्स, एक टेबल स्पून में 8 हो जाएंगे, राइट? वेरी गुड। 6 ये रहे, 2 और कर लेते हम लोग, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे एक बात ये बताओ, दोनों जगह के ऊपर हमारे पास वाटर की वॉल्यूम तो इक्वल है ना, लेकिन कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल्स कंपार्टमेंट ए के अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है और कंपार्टमेंट बी के अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है।
तो अब मुझे बताओ इन टर्म्स ऑफ हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक, कंपार्टमेंट ए क्या होगा? हाइपरटोनिक होगा, हाइपोटोनिक होगा? A, very good, is going to be hypotonic. Very good, बच्चे. A is going to be hypotonic. All right. And compared to this, क्योंकि कंपार्टमेंट बी के अंदर हमारे पास सॉल्यूट ज्यादा है, तो बी हमारे पास अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक हो जाएगा. वेरी गुड. ठीक है. अब देखो, अब अगेन, वेरी गुड बच्चा लोग. अब हमें पता है कि भाई two let's say solutions separate by a partially permeable membrane, if one of them is going to be a hypotonic solution, उसका water potential क्या होगा? ज्यादा होगा. If one other is going to be a hypertonic solution, उसका water potential कम होगा. And from a definition of osmosis, we know water molecules move from a region of higher water potential towards a region of lower water potential. Right? So what happens is कि now the movement of water molecules मेरे पास कौन से वाले कंपार्टमेंट से होगा? From what compartment to what? A to B or B to A? हम्म. अब दोबारा देखो. इधर देखो बच्चों. ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल. अब मुझे बताओ अगेन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है या हाइपरटोनिक का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है? ए टू बी. वेरी गुड. देखो, ये जो हाइपर और हाइपो वाली चीज है ना, ये बहुत कंफ्यूज करती है. इसने मुझे बहुत कंफ्यूज करा था. सो जस्ट हैव अ वेरी गुड ग्रिप ऑन टू दैट. इसको ना बड़े समझ के, ऑलवेज ट्रांसलेट व्हाट हाइपरटोनिक मींस. हाई सॉल्यूट्स, राइट? सो हाई सॉल्यूट्स वुड मीन लो वाटर पोटेंशियल. ठीक है. तो खैर, मूवमेंट हमारे पास जो होगी, एज यू गाइस सेड, वेरी गुड, इज गोइंग टू बी फ्रॉम ए टू बी. ऑलराइट. अच्छा जी. Now, up now, what we'll do is we're just going to copy this. Please. We will, Manu, we will. Give me a minute, Manu. We will.